हेलो डियर स्टूडेंट्स। रिसर्च मेथोडोलॉजी है हर एक एग्ज़ाम में आजकल जो एनटीए के एग्ज़ाम हैं, जैसे नेट का हो गया, सीयूटी हो गए, और जो पीजी के एंट्रेंस टेस्ट है, पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट है, सेट एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। इनके अंदर एक बहुत ही कॉमन सा सब्जेक्ट हो गया है ये, लेकिन जितना कॉमन दिखता है उतना ये कॉमन है नहीं। जैसे हर एक पीजी के अंदर आजकल हर कोई भी किसी भी क्लास की पीजी हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, हर एक के अंदर रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर है, उस सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है। आजकल जितनी भी जो यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे सेंट्रल हो, स्टेट हो, कौन सी भी यूनिवर्सिटी हो, हर एक के अंदर एक ही नाम आ रहा है कि हम सबसे ज़्यादा फोकस किस पे कर रहे हैं, रिसर्च पे कर रहे हैं। ये क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो बच्चों, रिसर्च होती क्या है? री प्लस सर्च। इंग्लिश के अंदर जब भी कोई नाम दिया हुआ होता है ना, तो उस नाम को पहले तोड़ कर देखते हैं भाई इस नाम का मीनिंग क्या निकलता है। री प्लस सर्च मतलब दोबारा से खोजना, ठीक है। देखिए, द वर्ड रिसर्च इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स, री एंड सर्च। री मीन्स अगेन एंड सर्च मीन्स एग्जामिन क्लोजली एंड केयरफुली। In simple words, research can be defined as the depth study of something in search of some new information. क्या? समथिंग इन सर्च ऑफ सम न्यू इन्फॉर्मेशन। तो रिसर्च क्या करता है? नई इन्फॉर्मेशन से वो लेकर आता है। आगे देखिए, रिसर्च इज ए प्रोसेस इन विच ए सीरीज ऑफ स्टेप्स आर यूज टू कलेक्ट एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टॉपिक और इशू। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है बेटा बच्चों, वो है स्टेप्स, सीरीज ऑफ स्टेप्स, ठीक है। आगे देखिए, रिसर्च इज ए प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक इंक्वायरी दैट इंटेल्स कलेक्शन ऑफ डेटा, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट डाटा इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद suitable methodologies set by specific professional fields and academic disciplines। अब ये प्रोसेस है, एक सिस्टम है, कलेक्शन ऑफ डाटा है, ठीक है। अब इन लाइन को अगर अपन समझें तो सीधी सी बात यह है कि रिसर्च है वो एक पूरे सिस्टमेटिक ढंग से की जाती है, ना कि अलग वे से, ठीक है ना। तो आगे देखिए, इसमें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च है वो किस तरह की होती है? तो रिसर्च होती है वो पर्पोजिव होती है। रिसर्च मस्ट बी पर्पोजिव। इट मीन्स रिसर्च मस्ट बी कंडक्टेड विद ए सर्टेन एंड definite एम, ऑब्जेक्टिव एंड पर्पज। कंट्रोल्ड। Control in research refers to a methodology that is to be applied while conducting research. Conducting controlled research is easy in lab-based testing, but it is very difficult to conduct controlled experiments in anthropology, where factors affecting relation cannot be controlled totally. Okay, rigorous. The process or procedure of research must be rigorous. It means the research must ensure that the procedure followed is relevant, appropriate, and justified. Okay, there should not be conflict and doubt with regard to the relevance of research taken by the researcher. Systematic, the study or research process should follow a sequence, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था। Empirical, the research should be based on observation, direct experimentation, or real life experimentation by the researcher. ओके बच्चों। क्रिटिकल, critical appraisal of research means an act of carefully and systematically examining research and its all finding to judge its reliability, validity, trustworthiness, value, and relevancies if results are applied in a particular field or context. It is the last condition of finding evidence reliability and efficiently. Objectivity, it means research is without bias. Other characteristics built around it usually take at most precautions that result are not affected by their own presence. Behavior and attitude, critically examine the research methods to avoid any bias. Reliability, reliability in the context of research is consistency, refers to the extent to which an investigation procedure consistently result, also termed as verifiability, similar results every time. Okay, validity, validity in research mainly stands for accuracy of procedure, research instruments, tests, etc. The concept of validity can also be understood by posing a question: are we measuring or able to measure what we originally intend to measure? Without validity, result goes
इन दी रॉन्ग डायरेक्शन। ठीक है। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, देखिए वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी क्या होती है? वैलिडिटी विद रिलायबिलिटी, और रिलायबिलिटी बट नो वैलिडिटी। देखिए आप ये जो मैप है इसमें से सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। देखिए टाइप्स ऑफ वैलिडिटी: कंटेंट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी, प्रोडक्टिव वैलिडिटी, डिस्क्रिमिनेटेड, कंस्ट्रक्ट और कन्वर्जेंट वैलिडिटी। ठीक है। तो कितनी होगी? 8 तरह की वैलिडिटी है ये होती हैं। आगे देखिए ये इसके टाइप्स हैं, थोड़ा सा इसको आप ढंग से देख लेना। कंटेंट वैलिडिटी कौन सी होती है? एडिक्वेटली मेजर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आए आप, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फेस वैलिडिटी, पढ़िए इसको ढंग से। क्राइटेरियन वैलिडिटी एंड कंकरेंट वैलिडिटी। डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्टिव, कन्वर्जेंट, रिलायबिलिटी। देखिए इंटरनल रिलायबिलिटी, एक्सटर्नल, स्प्लिट, टेस्ट, रीटेस्ट, इंटरेटर और पैरेलल। ठीक है। इंटर will discuss the consistency of result across item within a test। अब एक एक आराम से देखिए, स्क्रीनशॉट्स लेते रहिए साथ के साथ। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से हर बार चीज़ें उठती हैं वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। मैं अच्छी तरह से वीडियो रोक दूंगा बच्चों, जहाँ जो क्वेश्चन है जहाँ से हर बार उठते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च में क्या है? द मेन पर्पज ऑफ रिसर्च इज टू डिस्कवर आंसर टू मीनिंगफुल क्वेश्चन थ्रू साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक प्रोसीजर to gain familiarity or to achieve new insight into a phenomenon. This is known as exploratory or formalized research studies. To describe the accurate characteristics of a particular individual, situation, or group, this is known as descriptive research. To determine the frequency with which something occurs or with which it is associated with other things, this is known as diagnostic studies। ठीक है। टू टेस्ट ए हाइपोथेसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल, सच स्टडीज आर नोन एज हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज। मोटिवेशन इन रिसर्च, देखिए बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट मेक्स पीपल टू अंडरस्टैंड अंडरटेक रिसर्च, दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल importance। The possible motives for doing research may be either one or more of the following: desire to get a research degree along with its consequential benefits, desire to face the challenge in solving the unsolved problem, conquer over practical problem, initiative research, desire to get intellectual joy of doing some creative work, desire to be of service to society, desire to get respectability। Difference between positive and post positivism, पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविस्ट बिलीव दैट यूजिंग साइंस वी कैन मेजर, क्लासीफाई एंड अंडरस्टैंड। रियलिस्टिक, देयर इज समथिंग बट देयर दैट कैन बी मेजर्ड बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट लॉ और एब्सोल्यूट ट्रूथ। ऑब्जेक्टिविस्ट, क्वांटिफाइड, एम्पिरिकल एंड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। साइंटिफिक, सर्टेनली। अब आगे देखिए पोस्ट पॉजिटिव में क्या है, ये वाला तो साइंटिफिक है पॉजिटिविज्म, और पोस्ट पॉजिटिव है वो आगे देखिए क्या इस तरह का होता है। पोस्ट पॉजिटिविस्ट सजेस्ट दैट दिस इज ट्रू टू ए सर्टेन एक्सटेंट बट दैट वी मस्ट बी केयरफुल नॉट टू फॉरगेट दैट ए लॉट ऑफ आवर इंटरप्रिटेशन मे बी बेस्ड ऑन assumptions एंड conjecture and that we need to be aware of this। Critical realist presents that what she wanted to measure। मॉडिफाइड ऑब्जेक्टिविस्ट, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, दोनों के अंदर आ गया ना, ह्यूमनिस्टिक है और प्रोबेबिलिटी है इसमें। टाइप्स ऑफ रिसर्च, अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ से तो हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। टाइप्स ऑफ रिसर्च: फंडामेंटल रिसर्च, प्योर रिसर्च, थियोरेटिकल रिसर्च, कंसेप्चुअल रिसर्च और बेसिक रिसर्च। अब जो फंडामेंटल रिसर्च इज ड्राइवन बाय क्यूरियोसिटी एंड द डिजायर टू एक्सपेंड नॉलेज इन स्पेसिफिक एरिया।
specific research area. This type of research makes a specific contribution to the academic body of knowledge in the research area. फंडामेंटल स्टेज देखिए, स्क्रीनशॉट ये लेते रहिए। सबसे जो अप्लाइड रिसर्च आई है हर बार लगभग पेपर के अंदर नहीं आती है। एक एक्शन रिसर्च और एक अप्लाइड रिसर्च है। ये एक्शन रिसर्च बाय कोर्ट लेवन सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको मैं आपको समझाता हूँ। सॉल्यूशन ऑफ इमीडिएट प्रॉब्लम, लोकल लेवल प्रॉब्लम लाइक स्कूल लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल प्रॉब्लम, ठीक है ना। जब कभी भी इमीडिएट प्रॉब्लम की बात आए तो हमें एक्शन रिसर्च है वो करना है। यूज इन टीचिंग एल्सो, यूज ए टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च, इट कैन बी जनरलाइज्ड प्रैक्टिशनर एल्सो कैन डू कोलैबोरेटिव सेल्फ इवेल्यूटिव प्रोसेस प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट। Action research is a method of a systematic inquiry that teachers undertake as research of their own practice. Quantitative research, देख क्वालिटेटिव, स्क्रीनशॉट ले लें। नेट रिसर्च, ग्राउंड थ्योरी, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है तो इंडक्टिव से इसका और डिडक्टिव रिसर्च से, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल, डायग्नोस्टिक, एम्पिरिकल। अब है रिसर्च प्रोसेस, सबसे इम्पोर्टेंट। रिसर्च हर एक स्टेप्स इसका इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये हर बार पेपर में आता है, ठीक है। और ये ना चाहे हम रिसर्च है चाहे छोटे लेवल पे भी कर रहे हैं ना, जैसे कोई एमएड कर रहा है, ठीक है, कोई जैसे पीजी के अंदर जो पेपर आता है ना उसी के अंदर भी ये क्वेश्चन ये आता है। तो देखिए प्रोसेस क्या होता है। डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम, सबसे पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिव्यू ऑफ कंसेप्ट एंड थ्योरी प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग्स, ठीक है। फॉर्मुलेट डेवलप ए हाइपोथेसिस, रिसर्च डिज़ाइन इंक्लूडिंग सैम्पल डिज़ाइन, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, टेस्ट हाइपोथेसिस, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, इंटरप्रिटेशन और एंड रिपोर्ट। अब रिसर्च प्रोसेस इन डिटेल ये अपन करेंगे बाद में, ठीक है बच्चों। ऑल दी बेस्ट।